देखिए शनिवार रविवार रात 8 बजे। नमस्कार, मैं हूं अविंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेमन प्राइम टाइम। आज पूरे देश में एक ही चर्चा है कि मोदी जी लगातार विदेशी दौरा में बहुत बिजी रहते हैं और जो सबसे दूसरा पक्ष सामने आ रहा है कि सुषमा स्वराज भी बहुत कुंठित हो गई हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि उनकी जो तस्वीर उभर कर आनी चाहिए थी विदेश मंत्री के तौर पर, उनको लगातार इग्नोर करने की कोशिश की गई है। लेकिन सच्चाई तो प्रधानमंत्री मोदी ही जानते होंगे या सुषमा स्वराज जी। सबसे अहम बात है कि चीन की यात्रा को लेकर पूरी दुनिया में एक हलचल सी देखी गई। शिवसेना ने कहा कि चीन से सावधान रहना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद ने भी इस यात्रा को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। तो कहीं ना कहीं से ये पूरी जो यात्रा है उसको लेकर कई सफलताएं भी हैं, कई विवाद भी हैं और निश्चित रूप से जब भी हम विदेश में जाते हैं, खासकर भारत की छवि की बात करते हैं, तब हर तरफ एक उत्कंठा महसूस होती है, हर तरफ एक दिलचस्पी दिखाई जाती है कि भारत और चीन में जो भी दोस्ती हो रही है उसको किस नज़रिए से देखा जाए। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मोदी जी जैसे ही चीन गए वहाँ पर छा गए और 3 दिनों की यात्रा के बाद हर तरफ मोदी की गूंज सुनने को मिली। ऐसे में हम कह सकते हैं कि मोदी चीनी भाई भाई। तो भारत की प्रतिष्ठा, भारत का जो पूरा एक दर्शन रहा है, जीवन दर्शन रहा है, उसको लेकर मोदी साहब ने रिप्रेजेंट किया है उसको। और जाहिर सी बात है चीन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि सीमा विवाद को लेकर जो पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए थी उसमें अभी तक स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले हम शंघाई में मोदी साहब के भाषण को सुनते हैं कि शंघाई में किस तरह से उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए। सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी को। In Shanghai, we will see the agreements on first of those partnership between our industries. But to maintain this partnership over the long run, we must also improve the access of Indian industry to the Chinese market. I'm encouraged by President Xi's and Premier Li's commitment to resolve this problem. As much as our bilateral cooperation, our international partnership will be important for each other's success. Our changing world has created new opportunities and challenges. We both face instability in our shared neighborhood that can threaten our security and slow down our economies. The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face, for both its source is in the same region. We must also deal with the changing character of terrorism that has made it less predictable and more diffuse. We source a large part of our energy from the same region that faces instability and uncertainty future. India and China conduct their international commerce on the same sea lanes. The security of sea lanes is vital for our two economies, and our cooperation is essential to achieve it. Equally, we both seek to connect a fragmented Asia. There are projects we will pursue individually. There are few such as the Bangladesh, China, India, Myanmar corridor that we are doing jointly. But geography and history tell us that
the dream of an interconnected Asia will be successful when India and China work together. We are two countries that have gained a lot from an open, rule-based global trading system. Equally, we have more to lose if it breaks down. We both have enormous stakes in the international negotiations on climate change. Our cooperation in these reforms will be crucial to shape their outcomes. But Asia's voice will be stronger and our nation's role more influential if India and China speak in one voice for all of us and for each other. Simply put, the prospects of the 21st century becoming the Asian century will depend in large measures of what India and China achieve individually and what we do together. तो मोदी साहब के भाषण से एक बात साफ हुई कि आने वाला जो वक्त है वो एशिया का है और एशिया में ही भारत और चीन मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तो विकास का नया रास्ता बनेगा। और इस खास चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं मुंबई के जयप्रकाश सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जयप्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई भी 11 न्यूज़ परिवार की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं हमारे साथ घनश्याम शर्मा जी। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जिस तरह से देखा कि प्रधानमंत्री एक नई उम्मीद और नए विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं दोनों देशों के साथ, जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि वाकई चीन पे जितना भरोसा किया जाना चाहिए वो कर पाना सही रहेगा भारत की तरफ से? सबसे पहले तो आपने बधाई दिया 11 न्यूज़ को, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि आपने सम्मान दिया। और हमारे नेता माननीय संजय अनुपम जी के आशीर्वाद से, उनके प्रयास से, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से यह पद और मुंबई कमेटी की कल लिस्ट शाम को जाहिर हुई, जिसमें मुंबई का उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया। मैं माननीय संजय अनुपम जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि इस योग्य हमको समझे, और मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा निरंतर करता रहूँगा जिस तरह से किया। आप मोदी जी के बारे में जो सवाल पूछ रहे हैं, अभी वो चाइना में गए हुए हैं, भारत का पूरा सम्मान खो चुके हैं वहाँ पर। वहाँ के चाइना के न्यूज़ में भी क्या दिखा रहा है, किस तरह से उनको निगलेक्ट कर रहा है, उसको भी आप देखिए। जिस तरह से चाइना का सामान नकली आ रहा है, टेम्पोररी सामान चाइना का बन रहा है, उस तरह से मोदी जी का चाइना में जा कर के वो अपना हालत बना लिए हैं और देश की भी हालत उसी तरह से नकली बनाते जा रहे हैं। चाइना में जो नक्शा पेश किए वहाँ के लोग, उसमें हमारा 2 प्रांत गायब कर दिए। वो लोग ऐसे ही भारत में घुस गए हैं, वो उनके सामने ही दिखा रहे हैं कि ये 2 प्रांत अब आपके भारत में नहीं रहेगा। तो इस तरह की हालत जम्मू कश्मीर देश की कर दिए हैं। वो भारत के लोग जो भारत को अखंड और एकता देखना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए राजनीति से अलग हट के बात करें तो आपको नहीं लगता कि वाकई इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए इस देश में इतने एक्टिव नजर नहीं आए? नहीं, एक्टिव अपने काम करने के लिए थे। ये थोड़े थे कि जो हमसे विरोध करता है उसके यहाँ भी हम दौड़ते रहें, ऐसा तो कभी नहीं था। चाइना हमेशा हमारा विरोध कर रहा था, इसलिए हम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हर जगह नहीं जा रहे थे। जो हमारे साथ था उसके साथ हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे, जो विरोध करता था उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ तो जो विरोध कर रहा है, जो हमारे सीमा में घुसता जा रहा है, उसके पास भी आप जा रहे हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट आवे तो मैं उसका सम्मान करता हूँ। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, दो प्रांतों को वो लोग गायब करके नक्शे में आपके सामने दिखा रहे हैं, और चाइना घुसती जा रही है भारत के अंदर, उनको जवाब ठीक से नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से हम जा करके दोस्ती बढ़ा दें और अपने देश को हम उनको देते चले जाए, इस तरह की हालत हो गई है। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बड़ी ताकत के साथ जो बोले थे कि मैं आंख में आंख मिला के बात करूंगा, उस तरह से वहां बात करना चाहिए था, जो नहीं कर पा रहे हैं। शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्योंकि एक बहुत ही उम्दा बातचीत निकलकर सामने आई है कि सीमा विवाद सुलझ सकता है, और जो व्यापार है 24 मुद्दों पर हस्ताक्षर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो तकलीफ कम हो सकती है? जी,
सबसे पहले मैं भाई जयप्रकाश जी को बधाई देता हूं, उन्हें मुंबई कांग्रेस का उपाध्यक्ष चुना गया है आपके चैनल के माध्यम से। और आशुतोष जी, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और सोने की चिड़िया को जो है नोच नोच कर पूरा सोने की चिड़िया अभी नाम भी कहीं नहीं लिया जाता है। मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, 60 साल में कांग्रेस ने लूटा, घोटालों के घोटाले करते करते आए हैं। अब सोने की चिड़िया को वापस से सोने की चिड़िया देश कहा जाए, उसकी प्रक्रिया मोदी जी स्टार्ट कर चुके हैं और वो उसका असर आप देख रहे हैं हर एक देश में जा जाके। आज चाइना के अंदर वो जाके आए, चाइना के $20 मिलियन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर आने वाला है। जापान के अंदर जाके $35 मिलियन जापान जो है इन्वेस्टमेंट, इतने लाखों करोड़ों रुपए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाला है। तो ये देश विकास कैसे करेगा? तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। हर जगह जो है उनको पहले बोले ये यात्रा करके आ रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। वो 365 दिन उन्होंने काम किया था। जब ये सो रहे होते हैं कांग्रेस के लोग, नेता बड़े बड़े, वो काम करते रहते विदेशों में जा जाके। कहीं भी उन्होंने कोई किसी प्रकार का किसी भी ढंग से कहीं भी एक मिनट का हिसाब उन्होंने दिया हुआ है। इनके तो बड़े नेता है श्री राहुल गांधी जी, 2 महीने के बाद लोगों को पता चले कहाँ जाके आए वो। तो ये जो है मोदी जी के बारे उनके बारे में बोलने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कुछ भी चाहे वो बोल सकते हैं, उनकी जुबान हो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मोदी जी काम के माध्यम से जवाब देते हैं देश को। राहुल जी ने 0 नंबर दिया है 10 में से। 0 भी बहुत ज्यादा दे दिया। वो तो राहुल गांधी के बस से तो कुछ भी नहीं देवे। हम लोग खुद राहुल गांधी जी खुद अपने आप को क्या नंबर दे रहे पहले वो बता इस दीजिए। देश में गांव से आए हुए लोग हैं। गांव में एक रेडियो था, गांव भर के लोग समाचार सुनते थे। आज घर घर टीवी है। गांव में एक साइकिल था, घर भर के गांव लोग उससे बाजार जाते थे। एक कपड़े से सबकी शादी होती थी। आज सब लोग जिस तरह से रहते हैं, मोदी जी तो आज आए हैं ना, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। साहब, आज आपको याद नहीं आ गाड़ियों रहा की है, रेला लग गई है। पहले सोने की चिड़िया खाते थे हमारे देश आज को। टीवी के 60 रेडियो सालों के अंदर बदले क्या विकास टेलीविजन आया है। क्या विकास 60 नहीं सालों हुआ के है? अंदर देश ये को आज मोदी भी जी आपने तो खड्डा आज खोदने आए काम हैं। दिया है मनरेगा के हिसाब से आप देखने जाए और तो। जो आप कोई आपने काम नहीं दिया भ्रष्टाचार की देश बात को। करते हैं, देश के अंदर आपके आपने राष्ट्रीय देश को अध्यक्ष लूटने के बंगारू सिवाय लक्ष्मण कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। घूस लेते हुए पिछले पकड़े 60 गए सालों से आप थे बता दीजिए। भ्रष्टाचार में। कोई एक काम मुझे बता आपके दीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बंगारू लक्ष्मण कांग्रेस घूस ने लेते हुए किया पकड़े हो, गए थे। देश के लोग ये उसको दुरप्पा शान से आपके देखेंगे। मुख्यमंत्री जो है आज जेल जो में है थे मोदी जी आए हैं। भ्रष्टाचार के रूप देखिए, में। अभी तो भ्रष्टाचार आप काहे के लिए भ्रष्टाचार की बात करते आदरणीय हैं? मोदी जी आए हैं, हमारे देश का नाम बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, देश में देख रहे हैं लोग सामने अभी से बुलाते एक हैं महीने में कि 7 हम रुपया इन्वेस्टमेंट करना पेट्रोल चाहते का हैं दाम आपके बढ़ा देश है। में। पेट्रोल का नेहरू जी दाम थे। एक महीने में 7 रुपया बढ़ा है। इस तरह से कांग्रेस ने नेहरू कभी जी नहीं की बढ़ाया, कांग्रेस जिस तरह थी। से आपने नेहरू जी के बढ़ाया राम है। में चीनी मोदी चीनी ये कांग्रेस हिंदी और चीनी बीजेपी भाई का भाई का नारा आरोप लगा था प्रत्यारोप का मंच और हमारा नहीं देश का है। क्या हाल हुआ था। ये आज हमें ये समझना है कि मोदी जी की जो चीन यात्रा है उसको लेकर हम किस तरह से सोच सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। ये चर्चा हम जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह हमसे जुड़ गए हैं। राजकुमार, नरेंद्र मोदी की जो चीन यात्रा है उसमें क्या आप संभावनाएं देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं से सिर्फ दिखावा मानते हैं? क्या मानते हैं आप? नहीं, जिस तरीके से मोदी ने चीन यात्रा की, हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो लगातार अपनी यात्राओं पर हैं, जिसको लेकर विपक्षों के निशाने पर भी रहते हैं, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने निवेश की बात करी है, जितना बड़ा उन्होंने एक बड़ा अमाउंट दूसरे देशों से कलेक्ट कर रहे हैं, अगर इसको देखा जाए तो आने वाले समय में भारत में एक बड़ा निवेश होगा और उसका एक बड़ा फायदा जनता को मिल सकता है। तुरंत की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो कुछ योजनाएं चालू की गई हैं आम लोगों के लिए, उसमें एक बड़ा फायदा लोगों को हो सकता है, जिसमें चाहे बात बचत खाते की की जाए या प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो बनाई गई है, साथ में जो 1-2 और दुर्घटना बीमा योजना बनाई गई है, ये सारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही हैं और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। इसका एक दूसरा फायदा, हालांकि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक अच्छे कारोबारी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं उससे जनता को तो फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ इस वजह से देश में एक बड़े निवेश की भी चीजें सामने देखने को मिल रही, क्योंकि जब उन्होंने हर किसी को अकाउंट खोलने की बात कही, लेकिन बिना किसी नियम कानून के भी लोगों ने उसमें अपने पैसे जमा करने शुरू किए, जिस वजह से देश को और सरकार को एक बड़ा अमाउंट मिला है। और ऐसे में जो दुर्घटना बीमा की बात करें, जिसको 12 रुपए सालाना के हिसाब से है, 330 और 330 करके जो तमाम योजनाएं की गई हैं, इससे जनता को तो फायदा होगा, लेकिन सरकार को भी इससे एक बड़ा फायदा मिल रहा है, जिससे ये कहना बड़ा सही है कि मोदी जी एक अच्छे पीएम के साथ साथ एक अच्छे कारोबारी भी हैं। लेकिन राजकुमार जी, शिवसेना ने आरोप लगाया कि चीन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा उसने धोखा दिया है। जी सही है कि चीन, जो शिवसेना का कहना है वो सही है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन ये दो चीजें हैं। जब
नेहरू जी चीन से वापस आए थे अपनी यात्रा करके और उन्होंने जब कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद चीन ने आक्रमण कर दिया था। तो इस पैमाने को देखते हुए हर कोई ये कहने के लिए कह रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा है कि चीन कहता कुछ और है, करता कुछ और, उसकी चीन की अपनी नीतियां होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उस वक्त के प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा किया हो तो इस वक्त के भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। हालांकि एक बार अगर दूध का जला होती है बिल्ली तो वो छाछ भी फूंक कर पीती, इसलिए जरूरी ये होगा कि चीन से सतर्क रहें, क्योंकि चीन हर मामले में महाशक्ति, और कहीं ना कहीं उसके सैनिक की बात करी जाए, उसके हथियारों की बात की जाए तो भारत से ज्यादा उसके पास सभी आंकड़े मौजूद हैं। ऐसे में सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन ये पूरी तरह से कहना गलत होगा कि चीन इस बार भी आक्रमण करेगा या कुछ गलत करेगा, क्योंकि अगर बात पैमाने की जाए तो जिस तरीके से आधुनिकीकरण बढ़ रहा है उससे हिसाब से हर देश अब एक बड़े बिजनेस पैमाने पे एक दूसरे से जुड़ना चाहता है, क्योंकि भारत सबसे जनसंख्या के मामले में दूसरे स्तर पर है। तो हर किसी को पता है कि अगर उसका इन्वेस्टमेंट भारत में करते हैं तो एक बड़ा व्यापार उनको मिलता है, और चीन का इस वक्त भारत से एक अच्छा व्यापार हो रहा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और चीनी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो कम चीजों में कम और एक मूल्य में उन्हें उपलब्ध हो रहे हैं, भारतवासियों को हो रहे हैं, और इनको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना अब गलत होगा कि चीन फिर से आक्रमण या लड़ाई जैसी किसी चीज को आगे रखेगा। चीन भी वक्त के साथ बदल रहा है, वक्त के साथ बदल रहा है, और बदलना हर किसी की मजबूरी हो चुकी है। जी राजकुमार जी, जी मैं ये कह रहा था कि अभी जैसे आपने बताया कि चीनी बोलते कुछ है करते कुछ है, जी। आज की परिस्थिति बदल चुकी है। 60 सालों से कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, वो लोग ने देश के ऊपर कब्जा ही करता है, चीन ने या पाकिस्तान में अपने देश के ऊपर कब्जा होता है, लड़ाई लड़ी गई है। तो अभी मोदी जी को कोई आंख दिखाए, कोई पैदा नहीं हुआ है, न चीन न कोई और देश। तो ये अभी वो जमाना बदल चुका है कि जो है कब्जा कर ले या जो नक्शा जो पेश किया गया मोदी जी उस से नहीं नक्शे है। में हम दो बताना प्रांत चाहते को कि गायब कर दिया गया। मोदी जी एक चर्चित चेहरे हैं, ये सही है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कोई आक्रमण नहीं करेगा। चीन की इतनी एक आम ताकत जनता हुई की कि आम नक्शे लोगों की से दो सरकार प्रांत बनी को है, गायब कर दिया इसके उसने ऊपर अभी किसी मोदी की जी के हिम्मत सामने। नहीं आंख उठा के देखे भारत देश के ऊपर। आपको और ये याद नहीं देखिए, नजारा ये एक आप पॉलिटिकल पार्टी जुड़े होने के नाते ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे वो चीजें मैं देख रहा हूँ। शर्मा जी, आज जो स्टेटमेंट आते हैं, शर्मा जी, जी अगर विश्व हिंदू परिषद के आचार्य धर्मेंद्र आपका विरोध करते हैं, शिवसेना विरोध करती है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, वो दूध के जले, जैसे इन्होंने बताया, राजकुमार जी ने बताया, दूध के जले हुए हैं। नेहरू जी के टाइम पे कांड हुआ कि उन्होंने सीधा आक्रमण कर दिया हमारे देश के ऊपर। तो अभी वो परिस्थितियां बदल चुकी है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उन्होंने अपना जो पीछे का अनुभव है वो हिसाब से उन्होंने अपनी राय दी है। बाकी देश के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी ऐसा ग्रास रूट हम देख रहे हैं। देश का आज जो लोगों के जो नाम हुआ देश का पूरे विदेशों के अंदर, आज पूरी भूमिका बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं रही है। जयप्रकाश जी, मेक इन इंडिया की बात जिस तरह से मोदी साहब करते रहे विदेशों में जाकर, अगर हम चीन के संदर्भ में बात करें तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो हमारी सोच है, जो हमारी उम्मीद है, उस पर चीन की जो भूमिका है उसमें सफलता देखने को मिलेगी? सफलता चीन में जाकर के ऐसा साबित हो गया जैसे चीन का सामान बनता है ना, भारत में आता है, हर आदमी जो प्रयोग करता है सस्ते मिलता है, लेकिन काम चलाऊ रहता है, तुरंत एक बार बिगड़ गया तो बनता नहीं है, यूज एंड थ्रो। हाँ, उसी तरह का चीन में जाकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो ऐसा कर रहे हैं, अब पूरे देश के लोग लगता है कि ये सब जुमला हो रहा है। चीन में जाके जो व्यापार हो रहा है अब तो सब जुमला हो रहा है। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कह दिए कि 15 लाख रुपए जुमला की बात है, दिया नहीं जाता है, इस तरह से सब कुछ जुमला हो रहा है। और इसी तरह से अलग अलग रहे, इतना ज्यादा केवल व्यापार के वर्ग में न सोचा जाए, देश के रहने वाले लोग के वर्ग में भी सोचा जाए, थोड़ा गरीब लोगों पर भी ध्यान दिया जाए, केवल व्यापार पर ध्यान न दिया जाए। यहाँ इस देश में गरीब लोग भी रहते हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और यह काम यह सरकार नहीं कर रही है, यह सरकार केवल अमीर लोगों की बात कर रही है, अमीरों के काम कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी तरह से व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अच्छा लगा कि यहाँ बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, और भारत एक बार गुलाम होकर चला गया, गुलाम बन के रह गया। किसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी दिलाया। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपने हिसाब से ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ला करके विकास के चक्कर में ईस्ट इंडिया जैसा बात दोबारा दोहराया न जाए। और आज इनको अनुभव हो जाएगा कांग्रेस का आने वाले सालों में। आज कितने महंगा किया है आपको दिखाऊं, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी प्लेटफॉर्म टिकट को खड्डे में डालने का काम आज तक कांग्रेस ने किया, डबल कर दिया गया। आज गरीब आदमी अगर आप काम करते तो कांग्रेस अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह थोड़ी देर के लिए। अगर आप अच्छा काम करते तो आप जीत कर आते थे, मोदी जी को लोग नहीं चुनते थे। आपने सही काम नहीं किया, इसलिए आप हारे हो, आप ये कबूल आए हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से थोड़ा आदत डालिए, थोड़ी के बाद भी चले गए, आदत भी डालो। इसी तरह से सब जगह से चले जाएंगे।
क्योंकि जिस कांग्रेस देखो, हमें पार्टी विरोध करना है, जनता ये गलत जब बात है। बदलाव चाहती है, विदेशों के और उस अंदर हमारी बदलाव छवि खराब के होती है। चक्कर ये तो में नेताओं की हर आदत होती है विरोध विरोध करना। करना। मोदी जी ने गलत कर दिया, नेताओं की उसने मजबूरी है, गलत नेताओं की छवि आदत है। प्रकट इसी कर वजह से रहा आप ऐसे आए में हैं। लेकिन ये गलत छवि 5 प्रकट साल हो तक रही है। हमको नहीं लगता हमारे देश कि के आपके आपकी हमारे सबके सरकार प्रधानमंत्री 5 हैं साल वो। तक चलेगी जिस तरह से जहाँ हर जहाँ देश वो की जाते जनता हैं के साथ लोग व्यवहार वहाँ हो रहा है। लोग न इतने झोपड़े लोग वालों को उसका न्याय स्वागत मिल करते रहा हैं है, न उनका। फेरी वालों को न्याय मिल रहा लाखों है। करोड़ों का अच्छा, निवेश एक फेरी बड़ा- वालों को सताया जा रहा है, रोज फिर भी झोपड़े आप कह रहे वालों हो को गलत सताया कर जा रहे रहा हैं। है। मुंबई ये की कोई तरीका जनता- नहीं है। गरीब आदमी परेशान हो गया है। हाँ। जो भी आप राजनीति कर रहे कांग्रेस हैं पार्टी अमीरों के लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए दिशाहीन नहीं हो कर चुकी रहे हैं। है, मुद्दाहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे रहते नहीं है, सिर्फ मोदी जी दिखते हैं, कभी सूट बूट की सरकार बोलते हैं। तो आपका ज्यादा लुंगी पहन के वो चाइना जाए क्या? ये बताइए। नहीं नहीं, ये आपने सूट बूट पहन- कहा कि सूट हम बूट की चाय सरकार है, क्या बेचने मतलब वाले होता है? हैं। नहीं नहीं, हम आपके सूट बूट का प्रधान मतलब सेवक हैं। अरे हम भी चाहते हैं और हमारे आने अभी वाले आप बच्चे वो सब भूल गए। सब लोग सूट बूट पहने, हमारा वो सब किसान भी भूल सूट गए। बूट पहने, हम ये चाहते हैं। देश देश की तरक्की जनता कब करेगा? आपको चाय बेचने वाला, देश तरक्की एक कब करेगा? अपना मुझे सगा बताइए। भाई तरक्की समझने मतलब वाला, क्या होता है? एक मजदूर आपका ज्यादा जो समझने खड्डा वाला खोदता अपना रहे भाई कि चलो समझ के तरक्की वोट करें। दिया। लेकिन आप गलत तो बात है, आप सूट हमेशा वाले विरोध बन के करना रह गए। आपका ही- आपको ऐसा है। आप विरोध में वह सिर्फ सब विरोध ही भूल करना गए आप। कभी तो अच्छा देखिए, बोला करो। देश के प्रधानमंत्री एक जी मिनट अच्छा सुनिए काम ना। कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का जयप्रकाश सम्मान जी, करता हूँ। जयप्रकाश जी, 20 कांग्रेस बिलियन को डॉलर कांग्रेस आज को चाइना इस देश ने इन्वेस्ट मौका करेगा दिया। मेरे अपने भारत के अंदर, या इंफ्रास्ट्रक्चर रेल के अंदर बोलो, बुलेट ट्रेन बोलो, रोड बोलो, हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अभी तो क्या बुलेट ट्रेन आप देखेंगे जो हम कह रहे हैं उसमें क्या 35 सच्चाई है? बिलियन आपने सॉरी 15 लाख रुपया देने के लिए बोला, 1 35 रुपया नहीं बिलियन आया किसी डॉलर, खाते में। 35 मिनट और जापान अच्छे दिन करने वाले आने हैं। वाले कहे, तो लेकिन ये क्या आज हमारा तक जीत कोई नहीं अच्छा है? दिन नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, 7 सुनिए ना। रुपया इस महीने एक पे थोड़ी सी- पेट्रोल और एक डीजल का मंगोलिया दाम बढ़ गया। देश है, क्या मंगोलिया क्या देश कर जो रहे हैं? आज कौन तक सा ये दिन 60 आने साल वाले से हैं? प्रधानमंत्री रहे कब कांग्रेस लाने वाले पार्टी के, अच्छे दिन? कभी उस देश में इन्होंने कभी जाके देखा नहीं है। ठीक वहां है, तक प्रधानमंत्री नेताओं जी के साथ पहुंचे। साथ इस देश में जनता का भी बड़ा महत्व रहा है। राजकुमार, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन हम पहले सुनते हैं कि मुंबई की जो जनता है नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को लेकर क्या सोचती है, क्या कहती है। सुनते हैं मुंबई वालों की राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा किस हद तक सफल है, आइए जानते हैं इस पर मुंबई की जनता की क्या राय। पहले भी हिंदी चीनी हिंदी भाई भाई, तो अभी उसके बाद भी उसने आपस में हिंदुस्तान ने अटैक किया, चीना ने अटैक किया हिंदुस्तान के ऊपर, फिर उसके बाद फैसला हुआ। ये सब पॉलिटिक्स है, इससे दूर रहना चाहिए। कॉमन आदमी शुड बी वेरी अवेयर। काम के लिए गए थे, एटलीस्ट जो इन्वेस्टमेंट आ जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी डेवलपमेंट है, जिससे कि जॉब क्रिएशन होगा मार्केट में, और हमारे जो लाखों लाख करोड़ करोड़ बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं और जिनको नौकरी की ज़रूरत है, वो डेवलपमेंट होगा तभी उनको नौकरी मिल सकेगी। देखिए, एक राजनीति है, वो चाहे मोदी जी हों, चाहे वो चाइना के डेलीगेट्स हैं, जो भी वहाँ के डेलीगेशन हैं, ये सब राजनीति करते हैं। कभी पाकिस्तान को सेंटर में रख के कश्मीर को सामने लाएंगे, कभी वो खुद आ जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश को लाते हैं। तो ये दोनों तरफ की इच्छा शक्ति, आम आदमी का कोई सुनता नहीं है। ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें में बोल करके गुमराह करते हैं आम पब्लिक को। फ़ायदा एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियन उठाते हैं। चाइना कभी भी राजी नहीं होगा, और चूंकि वो बहुत ही पावरफुल है और वो वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो उनका अपना कुछ सोच है, उनका अपना कुछ बोल है जो अपने हिसाब से चलेगा, जिसको मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को अपने देश को आगे बढ़ा करके ही और पावरफुल करके ही उसको हैंडल करना पड़ेगा। उनके बोलने से वो लोग अपने विचार को नहीं बदलेगा। कि चीन का जो दोगली नीति है, वो आज के मैंने पहले से, चाहे 62 का युद्ध हुआ 65 का, तो उसका जो भाई भाई बोलना और बाद में छोरा घोपना, तो भी यानी अलगाव की जो नीति है, जैसे चीन तक नेपाल तक रेलवे बनाना होगा, तो मेरे हिसाब से सरासर वो दोगली नीति है और वो कभी भी धोखा दे सकता है। अगर इतनी ही इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से लेकर के जो भी चीज़ें आज, चाहे वो कांग्रेस रही या बीजेपी रही है, आम आदमी को हर जगह पे नुकसान है। ये दोनों पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, मुद्दा बना के हमेशा रखेंगे। कभी राम मंदिर का रखेंगे, कभी कश्मीर का रखेंगे, कभी अरुणाचल प्रदेश का करेंगे। ये जो दौरा है, जिसका मेन पर्पस था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है और उनको इंडिया में मेक इन इंडिया का जो स्कीम है, जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट लाना है, वो मेरे ख्याल से अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, वो मैं समझता हूँ कि जो चाइना कर रहा है वो गलत तो है, लेकिन एक बंदा जिनको मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम से जानता हूँ, और वो ऐसा बंदा है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना डर गया होगा उससे, और वो लाइन पे आ जाएगा मेरे हिसाब से। शिवसेना जो बोल रही है वो अपने हिसाब से एकदम सही है, और ये प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा, तभी जाकर के ये बात आगे बढ़ेगा, और गवर्नमेंट इतना इजीली इस बात को मानेगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना दौरे को लेकर शिवसेना के साथ साथ मुंबई के जनता को भी यह लगता है कि चाइना की दोहरी नीति से हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मैं अब्दुल हकीम हाशमी, लेमन न्यूज़, मुंबई। तो लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है अभिव्यक्ति की, और यही कारण है कि मुंबई वालों ने अपने अपने तरीके से उसका
गुणगान किया या विरोध किया या समर्थन किया, जो भी है आम जनता जो भी कहती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर होना चाहिए देश के नेताओं को। घनश्याम शर्मा जी, आप बताइए कि वाकई ये जो चीन के प्रति एक जो संशय है मन में, उसको आप कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। चीन के प्रति कोई शंका नहीं है। मैं आपको वही कह रहा था कि अभी जो आज में जैसे कि लाखों डॉलर बिलियन डॉलर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा उससे हमारा देश का भलाई होने वाला है, देश का उसमें तो कोई नुकसान है नहीं। और रही बात चाइना की आंखें दिखाने की बात, तो अब तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी है। अब सरकार बदल चुकी है, बीजेपी की सरकार जो मोदी जी हैं जैसे लोगों का भी वही आया है। और जो अरुणाचल का मुद्दा है वो एक सेंसिटिव मुद्दा है, वो हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो बैठ के अपना जैसे भी उनको ठीक लगता है वैसे करेंगे, उसमें हस्तक्षेप करने वाली बात नहीं दिख रही मुझे। और बाकी चाइना हो या जापान हो, जहाँ जहाँ भी गए हैं एक देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, हमें लगता है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर आके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। वरना ये खाली विरोध करने वाली जो बात है कांग्रेस की भूमिका वो गलत है। इस तरह से उनको ये बोलना ये सूट बोर्ड की सरकार है या ये इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरबान में हाथ झाँक कर देख ले कि कांग्रेस पार्टी का जो है भूतकाल क्या रहा है, उनका भविष्य क्या होना है। भूतकाल का पूरा ये कांग्रेस पार्टी में वही एनडी तिवारी जी इनके नेता रहे हैं, उनका पूरा इतिहास जानता है। जीजा जी रॉबर्ट वड्रा जी, जो हरियाणा सरकार ने अभी एक जांच कमेटी बिठाई है, जो क्या होने वाला आपको पता चल जाएगा आने वाले समय में। काफी जब संघवी जो जिनके जो प्रवक्ता हैं उनके बारे में आपने देखा होगा जो भी कांड हुए, कांग्रेस पार्टी का कल्चर, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पहले से ही रहा है। घोटाले जितने भी हुए आपने देखा होगा, कितना जमीन घोटाले जितने जो बाहर आए हैं, तो ये चीजों को ऊपर उठ के और प्रधानमंत्री जी को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। उनको सूट बूट बोल के ये पुराना नरसिम्हा राव जी का हसन मेहता का केस आपको याद होगा, हमला हुआ अभी, ठीक है। कांग्रेस के कल्चर को आप बदलिए थोड़ा सा, और बीजेपी बिल्कुल आप सबको सोच बदलनी होगी। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें राजकुमार, तो युवाओं को अगर हम देखें, इस देश में युवा काफी संख्या में लगातार अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी साहब भी चाहते हैं कि युवाओं को आने वाले दिनों में एक अच्छा वातावरण दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा से युवाओं का भला होगा? आशुतोष जी, एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, एक बड़ा चेहरे की बात करें तो बीजेपी में एक मोदी जी हैं जो बड़े चेहरे पे हैं, और कांग्रेस में युवा अध्यक्ष जो राहुल गांधी हैं। क्योंकि राहुल गांधी युवा हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अगर एक ओवरऑल फॉलोअर्स की बात की जाए, चाहे ट्विटर पे, चाहे जनरली लोगों के दिलों की बात की जाए, क्योंकि हम तमाम लोगों से मिलते रहते हैं, तो लोगों के दिलों में जो युवा वर्ग है वो अभी भी मोदी की तरफ ज्यादा है, बल्कि राहुल गांधी की तरफ कम है। दूसरी चीज जो कि ये मोदी का एक प्लस फैक्टर है कि युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में वो कामयाब हैं, क्योंकि वो उस एज के नहीं है, लेकिन फिर भी युवाओं की उस फीलिंग को पकड़ने में माहिर हैं, या यूं कहें वो उसके लिए मास्टर्स हैं कि क्या युवाओं को चाहिए। बात चाहे रोजगार की हो, नौकरी की हो, या उनके उस सोच की हो जो वो चाहता है। युवा वर्ग क्या चाहता है ये मोदी जी को भली भांति पता है। दूसरी चीज, चीन का जो दौरा उनका है वो पॉजिटिव है। ये पूर्वाग्रह बनाना पूरी तरह से गलत है कि चीन मोदी दौरे के बाद कुछ गलत करेगा, आक्रमण करेगा। शायद ये इस तरीके का पूर्वाग्रह अब बनाना गलत हो चुका है। तो कुल मिला के समय की कमी है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और घनश्याम शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, इस देश में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता रहेगा। विरोध अपनी जगह है, लेकिन जो रिजल्ट होना चाहिए, सात्विक रिजल्ट या सही रिजल्ट, उसको लेकर भारत की जनता इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था, पहले भी सुनने में आता था, लेकिन आजकल वही नारा बदल गया है और कहा जा रहा है कि मोदी चीनी भाई भाई। और आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस यात्रा के जरिए भारत की किस्मत में कितना बदलाव आता है। इस चर्चा में आज इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।